For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. देखो, आप लोगों ने फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं, तो बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से किसी ने मेरा सेशन पहले अटेंड किया हो? कई लोगों ने किया हुआ है, ग्रेट, एक्सीलेंट। जिन्होंने नहीं किया हुआ है उन लोगों के लिए क्विकली बता दूं, हेलो स्टूडेंट्स, दिस गाय इज अ कार्टून कैरेक्टर। जो लोग मेरे से इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उन्हें पता है, मैं अगर हाँ बोलूंगा तो मेरे से पहले ही वो लोग बोल देंगे के या खुरापाती काल रहा। सो एनी हाउ, एक्चुअली क्या है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। मेरा काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर in your work, in your life, in your relationship. In your relationship also, you should never be serious. If you're serious, you'll not enjoy that relationship. In your work, you'll not enjoy that work. If you're serious, in your studies, if you're serious, you'll not enjoy it. And that's not the perspective. The perspective is to be sincere. So, to be sincere, I prefer, relating stories, talking practical cases, and so on. तो उसमें हम लोग इसी वजह से थोड़ा सा कंसेप्ट्स जो हैं कहानियों के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू पढ़ते हैं। Anyhow, those who know me, I have been teaching thousands and thousands of students since past 22 years. I have taught lot many students, helped a lot of the students in getting their good results. I've been breathing these subjects, CMA, FME, SFM, SCMP, basically cost and finance, be it any level. CA level intermediate final, CMA level intermediate final, CS. I've taught MBA students. I've taught, this CFA program, and so on and on. So these subjects, and ultimately mentoring these students, CA, CS, CMA, and etc. Major focus जो है हमारा CA पे ही है. There was a time, those who are aware of, there was a time I used to do a bit of modeling. ये item. Those who are able to understand, वो चिकना, ये French cut, ये French cut. तो I had a choice to, be the face of XYZ product. कि भाई इस product को हम लोग advertise कर रहे हैं. Rather than doing that, today my books have my cover page. ये भी मेरा कवर पेज ही रह चुका है. वर्क दैट एक्स्ट्रा हार्ड टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. दीज आर माय कवर पेजेस. डोंट रीड, प्ले विद इट, एंजॉय करो. बेसिकली फंडामेंटल क्या, आप पढ़ाई में सक्सेसफुल या किसी भी चीज में सक्सेसफुल तभी होगे जब आप उसको एंजॉय करोगे, खेलोगे. देन अगेन, कुकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद मास्टर शेफ सी आशीष कालरा. Special recipe of success inside. And then to fly in the sky of success, you need wings of knowledge. And finally, grow your wings of knowledge with me, and so on and so forth. Now, coming back to this, guys, I'm here to help you succeed. Basically, fundamental क्या, plan, focus, continuous improvement with time is genius. This is a formula, success formula, जीनियस अगर आपने बनना है, किसी भी चीज में जीनियस बनना है, किसी भी चीज, देखो हर चीज में आप जीनियस नहीं बन सकते, ये बात समझ लेना. हर चीज में आप जीनियस नहीं बन सकते. सीखो सब कुछ, अबव एवरेज रहो, बट एक दो चीजों में जीनियस बन जाओ. प्लान, फोकस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद टाइम, कंसिस्टेंसी, critically important. You see, in order to be successful, obviously, you need these things. What are these things? You need, number one, आपके दिल में passion होना चाहिए. अगर आपको success चाहिए, तो you need what? You need passion. Number two, what you need is hard work. बिना hard work, अगर आप सोचो कि जी success ऐसी आ जाएगी, वो तुक्के से एक बार आ जाएगी, वो रहेगी नहीं. Success is not a destination. It is a journey. एक बार तुक्के से आप जीत गए, हर बार नहीं जीतोगे. You have to understand, success is a journey. You have to walk on the path of success. I have been walking on the path of success from more than 2 decades, and I will continue to walk because I choose to walk on it. And that is what I'm here
to share with you. So passion with hard work, and then only hard work नहीं. अब देखो ये बंदा hard work कर रहा है, ये बंदा hard कर रहा है और ये smart work कर रहा है. So it's not only hard work, but you need to do also smart work. Time management, the way you can do the same task quickly, easily, comfortably, and in a better manner. Then ultimately your success is yours. So what I'm talking about is, guys, देखो ऐसा है, आप में से जितने भी लोग, all of you, whoever have appeared in CA Foundation right now, CA Foundation के आपने अपीयर किया है, तो आपको मैं दो कैटेगरीज में बांटता हूं. पहली कैटेगरी श्योर, दूसरी अनश्योर. श्योर किस चीज का श्योर? भाई साहब श्योर हैं. यू सी, आई बिलीव इन समथिंग, यू नो, इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज राइट, फर्स्ट नो व्हाट इज रॉन्ग. इससे पहले कि आप हाउ टू क्लियर सीए एग्जाम्स लाइक सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल, एनीथिंग, एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू डू दैट? सिंपल. ये आप लोगों ने, जो लोग भी मेरे सेमिनार में थे पहले, तो ऐसा कुछ now this is also one of the characters that we see in our class. Those who follow us on YouTube must be knowing हमारा लौह पुरुष, not Iron Man, my friend लौह पुरुष. Anyhow, so how to crack CA exams? Basically CA exams कैसे crack करने हैं? But before I move on to this, in order to know what is right, you should know first what is wrong. सही क्या है से पहले गलत क्या है पता चल जाएगा ना, तो सही की अहमियत ज्यादा होगी. तो पहली बात, मैं इसमें भी इसी तरीके से बात करूंगा. जिन्होंने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स दिए हैं, अपीयर किया है और श्योर है भाई, मैंने तो भाई मैं बता रहा हूं, मैंने फेल होना है, पक्का है, कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं. फेल श्योर 100%, कोई डाउट ही नहीं रखना जी, मैं बता रहा हूं होने ही वाला है. आप में से कोई है वैसे श्योर, पक्का फेल, कोई नहीं रोक सकता? कोई नहीं है? अच्छा चलो, खैर मैं इनके लिए भी बताना चाह रहा हूं. अच्छा, आप में से कोई ऐसा नहीं है, बट अगर है भी तो इट इज ओके, इट इज फाइन, इट डज हैपन. फेलियर इज नॉट फाइनल टिल यू accept it and stay down. If you fall down is okay, but you get up again, that's not a failure. You bounce back, that's not a failure. Failure is when you fall down and you stay down. That's a failure. So anyhow, those who are sure who will fail, they should not wait till results at all. And what they should do? Start preparing again. फिर से प्रिपेयर करना शुरू कर दें. Again, फिर से शुरू कर दें. Start preparing again. और फिर आइडेंटिफाई करें क्या गलती की थी. देखो ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है. अब आप वही चीज पढ़ना और उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो जैसे पहले पढ़ा था, तो फिर से रिजल्ट क्या आएगा? नहीं आएगा यार. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, बट उससे पहले वैसे मैं कहूंगा, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट यू डिड. मोस्ट लाइकली जो लोग एग्जाम दे के फेलियर का पक्का होता है, उन्हें पता होता है, मैंने क्लास वर्क रिवाइज नहीं किया था, भाई मैंने होमवर्क नहीं किया था, भाई मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, भाई मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी, भाई मैंने जो है पढ़ाई नहीं की थी, मैंने लास्ट रिवीजन नहीं की थी, मैंने ये. They know most likely because they have gone through an experience of examination and they are sure they will fail. So they know what hiccups led them to this. Anyhow, so identify the mistakes and don't repeat the mistakes.
कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, they do things differently. They don't do it in a normal manner which most of the population, most of the people go for. Anyhow, then आप में से कुछ श्योर है जी, मैंने तो पास होना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. श्योर, पक्का यार, एग्जाम दिए हैं. अब वो देखते हैं 350 आएंगे, 320 आएंगे, 300 आएंगे, 280 आएंगे, 240 आएंगे, पास तो होना ही है यार. 400 में से आई डोंट नो 60% आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, 90 आते हैं, आई डोंट नो, बट पास तो यार पास. हट. तो आप में से कितने लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ग्रेट, एक्सेलेंट. नंबर 2, who are unsure they'll pass because of some paper. यार ये ना ट्रिकी गया यार, इसमें पास हो गए तो हो जाएंगे. कितने लोग इस कैटेगरी में हैं? ग्रेट. नाउ इन दोनों के लिए वैसे मजे की बात क्या है, ये सेम स्ट्रैटेजी है. इन दोनों के लिए मजे के लिए बात क्या है, सेम स्ट्रैटेजी है. क्योंकि ऐसा है, वंस अगेन, डू नॉट वेट. मैं पेन बदल देता हूं, मैं रेड पेन ले लेता हूं. डू नॉट वेट टिल रिजल्ट्स. श्योर कोई नहीं है यहां पे फेलियर वाला है, तो फिर फाउंडेशन की तैयारी, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं. कहानी खत्म, ये तो ओवर है. Those who are sure to pass, why wait for the result? You'll be wasting your time. Result will take almost approximately 2 months. मैं बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी है, जो हिसाब किताब है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मई 20 को पेपर ओवर होता था ट्रेडिशनली. मई 20, 1 तारीख 2 तारीख से शुरू होते हैं एग्जामिनेशन. मई 20 के आसपास पेपर सारे खत्म हो जाते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऑर्डिनरली. आई एम गिविंग यू द स्टैटिस्टिक्स, रिजल्ट की स्टैटिस्टिक्स. आईसीआई नीड्स टाइम टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स. मई 20 को एग्जाम्स ओवर हैं, तो उस हिसाब से जो रिजल्ट आता रहा है, सीए फाउंडेशन एज वेल एज फाइनल, दैट हैज कम on July 17th. Traditionally, before I'm talking pre-COVID times, COVID times की भी बात करूंगा, उसमें भी approximately 2 महीने से 2 दिन कम, 4 दिन कम, 5 दिन कम, ऐसे में आया है. 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया. 2 महीने जो मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगा रहा हूं, जैसे पिछला ये रिजल्ट आया था, आप लोगों को अगर पता हो, जुलाई में पेपर थे, अगस्त में नहीं आया, सितंबर मिड के बाद आया. 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया. कहने का मतलब 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आएगा. अगर इफ यू वेट फॉर द रिजल्ट्स, यू विल बी जस्ट, यू नो व्हाट आई विल से इज, अब आपको वेटिंग या वेस्टिंग कह दूं, मैं वेटिंग कह दूं, WAITING, या वेस्टिंग, इट्स योर चॉइस. You'll be just waiting and finally wasting your time. It's WASTING. I काट दूंगा उसमें, you can understand. I या S एक चीज आ जाएगी इसमें. If you'll wait, you'll waste. कहने का मतलब क्या है guys? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, देखो ऐसा है, सुन लो मेरी बात. आपको अगर अपने रिजल्ट तक वेट करना है, if you are going to wait till results, what is going to happen? पहले, in order to know what is right, first tell me what is wrong. Let me tell you what is going to happen. आप में से कोई भी लोग जो भी रिजल्ट की वेट करेंगे, what is going to happen? This is going to happen. रिजल्ट आएगा फरवरी मिड में, जो मेरी एंटिसिपेशन है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. तो फरवरी मिड तक जो है रिजल्ट आने के आसार हैं.
और जो क्लासेस फिर शुरू होंगी, जो लोग भी जैसे फेस टू फेस क्लासेस लेंगे या वर्चुअल क्लासेस, लाइव वर्चुअल क्लासेस लेंगे, ग्रुप 1 की क्लासेस शुरू होंगी, वो शुरू होंगी जैसे हम भी अपना स्केड्यूल कब से शुरू कर रहे हैं, मार्च 1 से। क्योंकि देखो ऐसा बड़ी सिंपल सी बात है, रिजल्ट आते ही एकदम से अगले दिन से क्लास शुरू हो जाए, दैट्स नॉट देयर। स्टूडेंट्स विल टेक टाइम। दिल्ली से बहुत सारे बाहर से बच्चे भी हमसे आके पढ़ते हैं फेस टू फेस की, अगर मैं बात करूं वर्चुअल भी, इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, रिजल्ट ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, थोड़ा सेलिब्रेट कर लूं, ये पार्टी, तो हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाता है। तो विल बी स्टार्टिंग आवर बैचेस फ्रॉम 1st ऑफ मार्च, एंड ये 1st ऑफ मार्च से लेकर दीज विल फिनिश ऑफ एनीवेयर अराउंड जून मिड। जो लोग भी तब पढ़ेंगे, ये 4 पेपर्स तब पढ़ेंगे, और जून मिड से ही अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड मान के चलो जून 16th के आसपास मैक्सिमम मेरी क्लास तो चाहे पहले भी शुरू हो जाए ग्रुप 2 की, बट जून 16 से अप्रोक्सीमेटली जून में ही हम लोग जो है ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करेंगे। जो लोग भी बोथ ग्रुप्स देने की सोचेंगे उन लोगों के लिए, और नवंबर में, क्योंकि आप नवंबर के लिए एलिजिबल होंगे, तो ग्रुप 2 के 4 पेपर्स फिर ये जून 16 से लेकर सितंबर 15 तक जाएंगे। कुंडा पे बाप भाई नहीं है तुम्हारा? मैं फोन को कह रहा हूं, प्लीज साइलेंट कर दो। स्मार्ट लड़का देखा नहीं और छेड़ना शुरू कर देते हैं। गॉड, क्या जमाना है, फोन भी छेड़ते हैं आजकल के। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जून 16 से। अब होगा क्या, जिन्होंने भी ये 4 पेपर पढ़े होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दीज 4 पेपर्स, क्योंकि वो अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहेंगे तो 4 पेपर्स यहां पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे नहीं, विच इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो, क्योंकि इन 3 महीने में आप इसको भूल जाओगे। आपके पास समय नहीं होगा, सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस होंगी, और आपको 1.5 month मिलेगा फॉर 8 पेपर्स रिवीजन, विच इज हॉरिबल। यू विल बी एबल टू डू 1 रिवीजन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पॉसिबल, इसमें जस्ट पास होने के आसार हैं। दिस इज द प्लान आफ्टर द रिजल्ट, इफ एनीबडी इज प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स इन नवंबर। Let me move to the other scenario which you are in right now. You don't wait for the results. Don't take 4 classes at a time. Reason being, you will not be able to give justice. No doubt, foundation में आपने 4 subjects at a time किया है, आपने चारों सब्जेक्ट्स एक ही साथ पढ़े होंगे, एंड इट इज जस्टिफाइड, इट इज फाइन। बट अब यहां अगर आप में से जितने भी लोग, यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू गिव अ सिंगल ग्रुप or you want to give both the groups. You need to decide. You want to give a single group or you want to give both groups. And if you want to give single group, it will be like this. Single group हम देंगे November 22 में, और अगला देंगे May 23 में। और जो लोग बोथ ग्रुप्स देंगे, दे हैव टू डिसाइड आइदर बोथ ग्रुप्स दें इन नवंबर 22 और मई 23। अभी अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो और बोथ ग्रुप्स देने की सोचते हो, इसका कंफर्टेबल प्लान विद मल्टीपल रिविजन्स मैं अभी बना सकता हूं, विद मल्टीपल रिविजन्स इसका प्लान, बिकॉज यू हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 months राइट नाउ। दिसंबर के फ्यू डेज, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, बिकॉज अदरवाइज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन मार्च 1st से चालू करोगे। एडवाइजेबल, ये आपके 2 महीने से थोड़े से ज्यादा दिन ये यूटिलाइज हो सकते हैं। चारों पेपर एक साथ नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने ये प्लान करना है, अगर आपने ये प्लान करना है, इन दोनों की प्लानिंग हो सकती है कंफर्टेबली। अब पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोग बोथ ग्रुप्स की सोचते हो, कितने लोग सिंगल ग्रुप की सोचते हो? रेज योर हैंड बोथ ग्रुप्स वाले। ग्रेट। कितने लोग सिंगल ग्रुप वाले? ग्रेट। आप लोगों का कोई डिसीजन ही नहीं है, पता नहीं, सुन लेते हैं, जो लगेगा देख लेंगे। यार, you need to have a clear set of targets. You really need to have clarity in mind what you want to do.
देखो मैं बोथ ग्रुप्स के एडवांटेजेस बताता हूं पहले और फिर सिंगल ग्रुप के भी एडवांटेजेस बताता हूं. लेट मी टॉक अबाउट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्लानिंग बाद में, काउंसलिंग बाद में. यू सी इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप, less subjects, less pressure. प्रेशर वैसे होता नहीं है, आप खुद लेते हो. वो आपकी प्लानिंग गलत होती है, उसकी वजह से होता है. आई हैव बीन सेइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट यू नो, आप गलत चीजों को सुनते हो, गलत चीजों को समझते हो तो गलती होती है. आप अगर ये सुनते हो सीए इज वेरी डिफिकल्ट तो गलती होती है. सीए इज वेरी डिफिकल्ट तो भाई अगर सीए इज वेरी डिफिकल्ट तो 100 में से 100 थोड़ना आएंगे. इतने 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ऐसे मार्क्स थोड़ना आएंगे. सर मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. सर गलतियां होती हैं और गलतियां आप अपनी मर्जी से करते हो. एग्जाम में करोगे या क्लास में करोगे, सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम पे करोगे, नेट प्रैक्टिस के टाइम पे करोगे या मेन मैच में करोगे, वो आपके ऊपर है. आप एग्जाम का प्रेशर लोगे या यहां पे टेस्ट दे दे के प्रिपेयर करोगे अपने ऊपर अपने आप को. इट इज ऑन यू, इट इज एब्सोल्युटली ऑन यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. भैया मेरे जैसे मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे टोटल मिला के 16 टेस्ट हैं, 16 टेस्ट हैं मेरे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के मेरे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अलग, टोटल मिला के मेरे 12 टेस्ट है. और ये टेस्ट 100-100 मार्क के हैं. जब आप 100-100 मार्क के इतने टेस्ट दे देते हो तो एग्जाम का प्रेशर क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता. तो मिस्टेक्स जो करनी है ना एग्जाम में नहीं करनी, यहीं करनी है. ट्राई फेल सक्सेस मेन एग्जाम में नहीं, यहीं पे प्रैक्टिस करना है. दैट इज द की मंत्रा. गेम की तरह लेना है आपने. कहने का मतलब आइडेंटिफाई योर कैलिबर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली. आइडेंटिफाई योर कैलिबर. इफ यू थिंक यू कैन गिव बोथ द ग्रुप्स, देन गिव बोथ द ग्रुप्स. बोथ ग्रुप्स का एडवांटेज क्या है? रैंक आएगी तो बोथ ग्रुप्स में आएगी. सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती. ऑल इंडिया रैंक 50 रैंक होती हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों लेवल पे. अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे जा सकते हो, रैंक ला सकते हो, तो बोथ ग्रुप्स ही देना है, सिंगल ग्रुप तो देना ही नहीं है. दूसरी बात, यहां पर सिंगल ग्रुप में क्या है, यू कैन गिव टाइम टू ईच subject and understand it to the core. अगर धीरे धीरे सहज पखेसो मीठा होए, हौले हौले से हवा चलती है तो अच्छी लगती है, तेज चलती है तो आंधी होती है. सोचो ना, लड़का लड़की को बोलता है ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, और आंधी चल रही है. उस लड़की के मुंह से क्या निकलेगा? तेरी डैश डैश डैश, तेरी डैश डैश डैश. फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपकी अपनी वोकैबुलरी है. मेरी वोकैबुलरी, हाय तेरी बातें कितनी अच्छी अच्छी, आए तो कितना प्यारा प्यारा, तेरी तो हमेशा याद सतावे. ये मेरी वोकैबुलरी. अब तेरी में आगे, उसके आगे आपने क्या लगाना है, वो आपकी वोकैबुलरी है. नाउ सो एनी हाउ द थिंग इज, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ सीरियस गाय, आई विल नेवर बी अ सीरियस गाय. आई एम those who do not know about me, I would like to tell you a bit about my qualification. I have done CA, I have done CS, I have done MCom, I have done MBA, I have done 2 executive training programs from IIM Ahmedabad. I have done 1 business development program from one of the India's agencies. I'm not here to advertise. It is a private agency. So anyhow, I have done this 1 course. I have done
स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, देर आर सर्टेन कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय, इफ यू आर अवेयर ऑफ, एनएससी की एक उन्होंने एजेंसीज बना रखी है, NISM और NCFM। मैं इनके मल्टीपल बार, NCFM मैं इनके मल्टीपल बार इनके पेपर्स दे चुका हूं, म्यूचुअल फंड्स के भी, डेरिवेटिव्स के। अपने को 3-4 साल में अपडेट करता हूं यार, कुछ नया आ गया तो उनका मटेरियल एक बार देख लेते हैं। 1000-1500 का पेपर होता है, जाके 3 घंटे 2 घंटे के पेपर होते हैं। तैयारी करने में मुझे हार्डली 2 दिन लगते हैं। पूरा मटेरियल दिया, देख लिया, 80-90-100% के आसपास आ जाते हैं। 100 एग्जैक्टली तो नहीं, बट 90s में तो मल्टीपल टाइम्स आए हैं। सिंपल सी बात, टिक के मारने होते हैं, MCQ होता है, कुछ नहीं है। तो ये दिए हुए, इट इज तो पीनट्स। बाकी यस, नो डाउट्स अबाउट इट, जो ये मेन है, ये चीजों में सबसे ज्यादा एग्रीवेटेड मेहनत लगाई है। MCOM में भी नहीं कहूंगा मैं, MCOM में भी बस पढ़े, एग्जाम दिए, निकल गया। अब आपके केस पे आते हैं। देखो, रैंक आ सकती है। आपको एक चीज बोलूं तो सेट ऑफ नाम की एक चीज होती है, चाहे CA CS सभी में, CMA सभी में सेट ऑफ नाम की चीज है। कहने का मतलब, सोचो, इमेजिन करो, एक ग्रुप में आपके 40 है और दूसरे ग्रुप में 60 है। आपके बहुत ग्रुप्स पास हैं। आपका सीन क्या है? आपके किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होने चाहिए, और अगर आपके टोटल मिला के 400 आउट ऑफ 800 है तो आप पास हैं। मैंने बहुत बार देखा है, एक बच्चे के 190 यहां पर है, 220 वहां पर है, या 210 वहां पर है, और निकल गया। It is a fact. There is a benefit of with what we call set off. Set off का एक गेन जो है, you get a benefit. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को उठा सकता है। Anyhow, तो इसमें एक और एडवांटेज है, अगर आप इसको टाइमली करोगे, ओनली देन यू कैन डू डीप अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज डीपली नहीं पढ़ पाओगे। ये जो मैंने आपको बोला ना, व्हाट इज रॉन्ग, जो रॉन्ग था कि भैया पहले आपने ये 4 पेपर तैयार किए, फिर 4 पेपर तैयार किए, दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या होगा, इन 4 पेपर को यहां रिवाइज नहीं कर पाओगे, इन 4 पेपर को यहां 8 पेपर को ये 1.5 महीने में रिवाइज करोगे, पास होने के, जस्ट पास हो गए वाली बात होगी। दिल बी अ डाउट। But on the other hand, let me talk about the strategy. When you are sure you'll pass, do not wait for the result. When you are unsure, still start preparing for group 2. But not all the 4 papers. Not all the 4 papers. Go easy. What I am telling you is, ध्यान से सुनना, hello, clearly. अगर आप श्योर हो पास वाला, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जो अनश्योर है उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। जो श्योर वाले हैं, पास वाले, आपको भी प्रिपरेशन शुरू करनी है, लेकिन या तो आप 4 पेपर पढ़ो या 3 पेपर पढ़ो, इट्स ऑन यू। ग्रुप 2 के अभी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, फेस टू फेस एज वेल एज लाइव वर्चुअल एट योर होम, वट एवर, लाइव एट सेंटर। यहां पे एक्चुअली पर्सनली वैसे मैं बिलीव तो ये करता हूं कि आप सेंटर पे आते हो, थोड़ा एक माहौल बनता है, लाइव क्लास लेते हो, एक माहौल बनता है, बच्चे घर पे भी पढ़ लेते हैं वो ना, लेकिन कंपटीशन का सेंस जो है वो खत्म हो जाता है। जितने भी लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव से पढ़ रहे हैं, आप में से कई लोगों ने ये चीज फील भी किया होगा, कंपटीशन नहीं होता, वो जील एंथुजियाज्म नहीं होता, पॉज कर दिया, एंड वो एक सिस्टम और जैसे कहते हैं ना, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड काम, वो थोड़ा सा कन्वीनियंस बहुत है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, बट बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल है कि यू डोंट हैव एनीबॉडी टू compete विद। अब मैंने पिछले इतने साल में रैंक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके, तुम्हारा 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 आइडेंटिफाई करके बता देता है बंदा। अब आप घर पे हो, कौन बताएगा यार, आप पेन ड्राइव से पढ़ रहे हो। मेरे से कई बच्चे इस बार जैसे रैंक 2, रैंक 4, 5, 8 इस बार के रिजल्ट में थे, क्या मैं उन्हें बता पाया कि तुम्हारी ये रैंक आएगी? नहीं, नो डाउट्स अबाउट इट। रैंक 2 ने मुझसे अलग से बात की थी एग्जाम से पहले, शी हैड सम प्रॉब्लम, सम फैमिली प्रॉब्लम, बच्चे डिस्कस कर लेते हैं कुछ ना कुछ, अभी भी डिस्कस करते हैं। नाउ शी स्टडिंग CA, फाइनल की क्लासेस उसने शुरू कर दी हैं। शी केम ओवर द अदर डे, सर अब क्या करूं, रेगुलर कॉलेज चल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है,
मूवीज देख देख के नेटफ्लिक्स सीरीज खत्म कर डाली, अब क्या करूं? मैं कहा, तैयारी करनी शुरू, या तो कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स कर ले, या नहीं तो अपनी सीए की तैयारी करनी शुरू कर दे, ये वाले पेपर शुरू कर दे, एंड सो ऑन. लेट्स नॉट go over there. Let's come back. You're sure to pass. Either take 4 subjects or take 3 subjects. If you take 4, then you take 2 next time and then 2 next time. क्योंकि देखो ऐसा मैं 2 इसलिए बोलूंगा, इन 4 को रिवाइज करना है आपने. If you take 3, then take 3 next time and then 2 next time. क्योंकि देखो अगर आपने अभी 4 लगाए और 4 फिर से मार्च में लगा दिए, फिर गलत हो गया ना यार. आप ये वाले जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो तो रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो 4 and 4 इज अ बैड स्ट्रैटेजी. रीजन बीइंग, इन 4 को आप नेक्स्ट जो पढ़ोगे उसके साथ रिवाइज भी तो करना है यार. तो 4 के बाद फिर 2 ही लगाएंगे. 2 मींस आपकी क्लासेस कितनी चल रही होंगी? मैक्सिमम 6 आवर्स अ डे, मैक्सिमम 6 आवर्स अ डे. और आप यार 10-12 घंटे तो दिन में पढ़ ही सकते हो यार. स्कूल डेज का ही याद कर लो यार, स्कूल के कितने आवर्स होते थे, और फिर घर से आके वहां से आके ट्यूशन पढ़ते. स्कूल का क्या टाइम होता था भाई आपका? 7 से 2. 7 से 2 हो गए हमारे 5 और 2 7 घंटे, 7 आवर्स. घर आके ट्यूशन व्यूशन कितने सब्जेक्ट्स की 11वीं 12वीं में कितने घंटे पढ़ते थे दिन की? मैथ्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, व्हाटएवर, कितने घंटे? और सेल्फ स्टडी सब मिला के 4 घंटे मान लूं, 6 माने, चलो 5 मान लेते हैं, मैं ज्यादा भी नहीं कहता. तो कहने का मतलब, जब आप 11वीं 12वीं में 12 घंटे पढ़ते हो तो क्या अभी 12 घंटे नहीं पढ़ोगे? जब आपके ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे आप, उसका 6 घंटे की, आपके 3-3 घंटे की मैक्सिमम क्लास होती है. 3 आवर्स इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी क्लास. तो 3 आवर्स 3 आवर्स, 2 सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े, 6 घंटे आपने न्यू सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स को दिए, और 6 आवर्स आप क्या करोगे? रिवाइज दीज सब्जेक्ट्स. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, देखो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन स्टडीज. आई विल शेयर द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस विद यू in the first class also, as well as आज भी बताऊंगा, as well as almost every class में ही बताऊंगा कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है. अब फॉलो कितने करते हैं? क्योंकि होता क्या है, बूंद 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 पड़ती रहती है ना पत्थर पे, कभी ना कभी तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता है, उसमें भी छेद हो जाता है, उसमें भी क्रैक आ जाता है, कुछ ना कुछ उसकी भी शेप बदल जाती है. अल्टीमेटली आई विल कीप ऑन bombarding this thing कि ultimately what is going to happen is 4 सब्जेक्ट्स अगर अब ये आपने लगा लिए, लगाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. ये 4 कंफर्टेबली आपके आराम से एक साथ हो सकते हैं. लेकिन अगर उसके बाद आपने फिर से 4 लगा दिए या 3 भी लगा लिए, आप इनको रिवाइज नहीं कर पाओगे. सो इफ यू आर गोइंग फॉर 4 सब्जेक्ट्स राइट नाउ, चारों के चारों सब्जेक्ट्स अभी पढ़ लो, तो प्लीज गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट टाइम. विच 2? आई विल टेल यू. विच 2? आई विल टेल यू. इसमें फिर कौन से 2 पे जाना है, कैन बी, अल्टीमेटली आपको उठाना है प्रैक्टिकल. अल्टीमेटली आपको उठाना है प्रैक्टिकल, और या फिर बड़े सब्जेक्ट्स. मैं आपको ना बता दूं, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं. ऑब्वियसली ग्रुप 2 के पहले बताता हूं, क्योंकि ग्रुप 2 की अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं. ग्रुप 2 का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. आर्स बताना चाहूंगा. इसके समवेयर अराउंड, देखो मैं पढ़ाता हूं ये वाला सब्जेक्ट, इसके एनीवेयर 55. मैं ना, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं मिनी मैक्स प्लान. प्लानिंग करते हैं आप लोग. आप में से कितने लोगों ने रिटर्न प्लान, जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों से मिला था, मैंने कहा था रिटर्न प्लान बनाओ, किसी ने बनाए थे? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा प्लान्स कैसे बनाते हैं. मैं अपने भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैं कैसे बनाता हूं. आई विल शो इट टू यू. मैं इस बैच का दिखा सकता हूं, मेरे फोन में है, मेरे लैपटॉप में है, मेरे फोन में है. मैं प्रिंट आउट भी रखता हूं. अभी प्रिंट आउट प्रेजेंटली नहीं है मेरे पास, बट आई कीप विद मी माई प्लान्स, क्योंकि आई नो वेयर आई नीड टू रीच दैट डेस्टिनेशन. वो डेस्टिनेशन पे मेरे को पहुंचना है, तो मुझे ये रास्ता चाहिए ना, प्लान चाहिए. जैसे मुझे पता था मैंने 26 से आपका बैच शुरू करना है, तो मेरी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाने थे, मुझे 25 तक खत्म करने ही थे. आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ माय बैच यस्टरडे. कल मेरा बैच खत्म हुआ, तो मैंने आपका आज का सेमिनार अनाउंस कर रखा था. इट्स ऑल प्लान्ड. यू नीड टू प्लान, बट मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से. मैक्सिमम वॉज 25 तक खत्म करूंगा. मिनिमम मेरा था 20 तारीख तक खत्म कर दूंगा. इनको बोल रखा था 20, 21, 22 कहीं पे भी खत्म हो जाएगा. वील सी, बट आई विल नॉट हश और रश. तो मेरा मिनिमम 55 लेक्चर्स, मैक्सिमम 66 लेक्चर्स लगने हैं. किसमें? सिर्फ एफएम की बात कर रहा हूं मैं. इकोनॉमिक्स के 60 आवर्स और हैं, इसके 60 आवर्स और हैं. इसके कम से कम 55 लेक्चर, मैक्सिमम 66 लेक्चर्स. टेस्ट अलग है.
होमवर्क डिस्कशन अलग है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको हर क्लास में कॉन्सेप्ट कराऊंगा। कुछ शुरू की क्लासेस तो थ्योरी चलेंगी, बट आगे चल के प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तो मैं टेक एन एग्जांपल, आपको एक क्लास में मैंने 5 सवाल क्लास वर्क कराए, तो मैं अगर 5 सवाल क्लास में करा रहा हूं, 6-7 आपको होमवर्क दूंगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। अब वो जो होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क के नीचे आंसर्स हैं। मजे की बात क्या है, आपकी एक होमवर्क बुक होगी, प्रैक्टिस बुक जिसे मैं कहता हूं, वो प्रैक्टिस बुक में आपके सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो आपके होमवर्क है। मैं बोलता हूं भाई 1 to 7 करके आना, 1 to 7 करके आना। मैं आपको इवन प्लानिंग के लिए मैं आपको मार्क्स बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ 8 मार्क्स, ताकि आप प्लान कर सको कि एक में कितना टाइम लगाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके टोटल, इफ यू गो अनप्लान दैट्स बैड। मैं तो हर क्लास, ये कुछ मेरे सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, अभी एक दो ये एक्चुअली वर्चुअल क्लास यहां पे ले रहे थे, तो ये मेरे से ये मुझे बताया था, तो इसीलिए मैंने पूछा कितने लोग इंटरमीडिएट के हैं, कुछ आए हुए हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं इनको डेली, जब मैं इनको टारगेट देता हूं, मैं साथ के साथ इनको ये बताता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 8 मार्क्स का। इसके बेसिस पे ना हम एक अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने टाइम में खत्म हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो यार टाइम के हिसाब से चलना है ना, मार्क्स के हिसाब से चलना है। आपको टोटल 195 मिनट्स मिलते हैं, 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं, पता है आपको। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 15 मिनट पहले। जैसे अगर आपका 2 से 5 पेपर है ना, आपको 1:45 बजे, आपको 1:30 बजे एग्जाम हॉल में घुस जाना है, 1:30 बजे, 1:40 वटेवर, 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा, आंसर शीट नहीं। पहले जनरली आप लोग जब स्कूल वूल के एग्जाम्स देते हो या अदरवाइज कोई एग्जाम देते हो, वहां पर आपको आंसर शीट पकड़ा दी जाती है, लो भाई आंसर शीट पकड़ो, रोल नंबर लिखो, लाइनें खींचो, जो करना है करो, और फिर क्वेश्चन पेपर डॉट टाइम पे देते हैं। यहां क्या होता है, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं। वो 15 मिनट में आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और उस क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको अपनी क्लासेस में, मेरे सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल, और रादर प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, उस 15 मिनट को कैसे यूज करना चाहिए, हाउ वील रीड द क्वेश्चन एंड हाउ वी एनालाइज, वो सिखाऊंगा। एनी हाउ, बात की बात है, तो बात क्या है, आपको 195 मिनट्स में 100 मार्क्स करने हैं दोस्तों। अगर 100 मार्क्स 195 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, 1.95 मिनट, मोटा मोटा 2 मिनट पर मार्क हो गया भाई। इतने मिनट, 3 घंटे मीन्स 180 मिनट, 15 मिनट और, तो 1.95 मिनट, या मोटा मोटा राउंड ऑफ कर देता हूं तो 2 मिनट्स पर मार्क है। तो ये कितने में हो जाना चाहिए, 10 मिनट मैक्सिमम। ये कितने में हो जाना चाहिए, 16 मिनट। तो यू कैन डू द टाइम मैनेजमेंट। मैं जनरली बोल के चलता हूं क्लास में कि भाई मैं एक दिन में आपको होमवर्क, चाहे कॉस्ट हो चाहे एफएम हो, जनरली मैं 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं देता। अब कल की क्लास 3 की सीएमए वालों की लुच्चे, लास्ट टू लास्ट क्लास थी, मैंने होमवर्क देना भूल गया, इतने सारे बच्चे बैठे हुए क्लास में, किसी ने याद नहीं दिलाया, सर आज का होमवर्क नहीं है क्या, कोई नहीं याद दिलाया। तो कल मुझे फिर 100 मार्क का देना पड़ा, मैं क्या करूं। अगर यार तुम सही हो यार, ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दे देना चाहिए था, तुमने बताया नहीं, मेरी प्लानिंग खराब करा दी। सर कोई बात नहीं, एक दिन तो एंजॉय कर लिया ना, लुच्चे। Anyhow, so coming back to this, you have to do this time management in the exam. So you need to do this time management when you are practicing, when you will be doing your homework. You need to know. तो मैं आपको हर सवाल के कितने मार्क्स हैं वो मैं आपको बता के चलूंगा। आप अपनी बुक में ही बाजू में मार्क्स लिख के चलोगे, उससे आपको ये पता रहेगा कितने मिनट में हो जाना चाहिए सवाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही चीज जब आप क्लास के अंदर और जब होमवर्क करते समय इसकी माइंड की ट्रेनिंग होगी, तो मेन एग्जाम जब आएगा तो मार्क्स देख के आपको पता है ना कितने मिनट में करना है, यू नो दैट एनी हाउ। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, इस हिसाब से मोटा मोटा अगर मैं बोल दूं, चलो मिड वे ले लेता हूं, 60 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स, 180 आवर्स प्लस 60 आवर्स, 240-250 घंटे, 240-250 घंटे का ये है। Second big subject of group 2 is accounts. It takes something like 65 to 70 lectures ले जाता है मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से, into 3 hours again, तो 195 to 210 hours, 210 घंटे, ये सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों जो हैं बराबर से हैं, ऑडिट है और EISSM है, दोनों थ्योरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। देखो आपको इन एनी केस प्रैक्टिकल तो पहले करना ही है। जो लोग भी श्योर हैं क्लियर करने के, या तो चारों लगाओ,
या 3 लगाओ, और 3 में भी कौन से 3? दोनों प्रैक्टिकल तो लगाने ही है भाई, प्रैक्टिकल नीड्स मोर प्रैक्टिस, एंड थ्योरी भूल भुलाना जाओ। अगर आपने 3 लगाने हैं तो इनमें से फिर कोई एक लगाओ, दैट इज योर कॉल, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यू मेक योर चॉइस विच 3, if you want to take 3, if you want to take 4, it's your call. This goes 120 to 140 hours. हमारी जो क्लासेस यहां पर जा रही हैं थियरी की, 120 to 140 hours. This is, तो ये आपके जो है छोटे सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू द प्रैक्टिकल ऊपर वाले बड़े सब्जेक्ट्स। तो अगर आप श्योर हैं पास होने के, तो यू गो बाय दिस, आइदर यू टेक 4 राइट नाउ, देन 2, विच 2 टू टेक? अगर आपने 4 लिए तो कौन से 2 लेने हैं? नंबर 1 देखो यार, टैक्स वहां का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आपके टोटल ग्रुप 1 के 4 पेपर्स हैं। पेपर 1 इज अकाउंट्स, पेपर 2 इज, मैं रादर ना बिग टू स्मॉल ही लिख देता हूं, पेपर 1 2 नहीं, ये पेपर 4 है आपका टैक्स। एग्जाम में जो आपका चौथा पेपर होगा टैक्स होगा, बट दिस विल टेक 100 लेक्चर्स ऑफ 3 hours, दैट इज 300 hours। अगर मैं अपने लेक्चर की बात करूं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट, उसमें देखो अगेन 80 to 90 लेक्चर्स, मैं मिनी मैक्स प्लान से चलता हूं। जैसे इस बार भी हमारे समवेयर पता नहीं 87 88 85 कुछ ऐसे लगे होंगे, 80 तो नहीं लगे, थोड़े ज्यादा लगे, तो डिपेंड करता है। तो 80 to 90 लेक्चर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 hours, सो कहने का मतलब हायर साइड पे 270 घंटे, हायर साइड पे। थर्ड नंबर इज अकाउंट्स, समवेयर अगेन 65 to 70 लेक्चर्स इनटू 3 hours, हायर साइड पे 210 घंटे। और चौथा नंबर इज लॉ, 52 to 58 लेक्चर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 hours इज 174 घंटे, 174 hours। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसे है। तो अगर आपको 2 लगाने हैं तो आपको कौन से 2 लगाने चाहिए? ये 2 लगाने चाहिए, क्योंकि बड़े पहले खत्म हो जाते हैं ना, छोटे का इतना प्रेशर नहीं रहता। ये 2 लगाएंगे और बाकियों की रिवीजन करेंगे पिछले 4 पेपर की। अगर आपने यहां 3 लगाने हैं, इफ यू हैव टू गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स ओवर हियर, इफ यू हैव टू गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स, विच 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2? देखो बट ऑब्वियस बात है, एफएमएन को सबसे बड़ा भी है और प्रैक्टिकल भी है। नंबर 2 एडवांस अकाउंट्स, प्रैक्टिकल है। नंबर 3 यू चूज द थर्ड वन, ऑडिट EISSM, यू चूज, आई विल नॉट से एनीथिंग। EISSM में थोड़ी क्रैमिंग ज्यादा है, अगर आपने उसको डेफर करना है तो वो कर लो, तीसरा ऑडिट लगा लो, वट एवर एज द केस में। अगर 3 और फिर 3 नेक्स्ट 3 करने हैं, यहां पर जैसा भी है एज द केस में भी, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी 3 ओवर हियर, देन स्टडी 3 ओवर हियर। 3 ओवर हियर, विच वन? टैक्स, CMA एंड अकाउंट्स। लॉ छोटा है, बाद में किया जा सकता है। इस हिसाब से ये 3 होंगे, इन 3 को इनके साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। इसको, इनके सिलेबस को खत्म होने में 4 महीने लगेंगे। इस 4 महीने में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते साथ में इनको रिवाइज करेंगे। अगर आपने, वंस अगेन, अगर आपने ये 4 कर लिए तो इनके 4 महीने लगेंगे इन 2 सब्जेक्ट्स के, इनको आपने साथ के साथ रिवाइज कर लेना है, ऐसा करके चलना है आपको। एंड लास्ट में अगर वंस अगेन, तो यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। तो मैं एक बार आखिर बार फिर से बता दूं, दोज हु आर श्योर, यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप 2 के ऑल दी 4 पेपर्स स्टार्ट इन December, एंड देन ग्रुप 1 के 2 पेपर्स स्टार्ट इन March प्लस रिवाइज ग्रुप 2। ये ग्रुप 1 के पेपर्स के साथ रिवाइज ग्रुप 2, 4 पेपर्स। एंड देन वंस these papers are revised, then you start with remaining 2 papers. जब ये 2 पेपर्स खत्म हो जाए आपके, समवेयर मेरे ख्याल से जून मिड तक खत्म हो जाएंगे, जून मिड के आसपास आप रिमेनिंग 2 पेपर्स उठाएंगे और फिर ये 6 के 6 पेपर्स रिवाइज करेंगे। पहले ये 2, फिर वो 4, मल्टीपल रिवीजन्स करनी है हमने, 6 पेपर्स रिवाइज। ये कौन से पीरियड में? जून मिड से लेकर आपको कोशिश करनी है इसको
समवेयर अराउंड अगस्त एंड तक खत्म हो सकते हैं, क्योंकि दो पेपर रहते हैं। आप इनको समवेयर 6 to 7 आवर्स इसको दे देंगे, पिछले की रिवीजन को 6 से 7 घंटे दे देंगे, वट एवर एज द केस में भी, अगस्त एंड तक इसको पैक करेंगे। यू हैव टू हैव अ प्लान। और देखो, जब क्लासेस लेनी है का रिटर्न प्लान ना रखो। जब आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो उसका रिटर्न प्लान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको रिवीजन करनी है, यू नीड टू हैव अ रिटर्न प्लान। जब वो जो काम आपने सेल्फ करना है, जो कोई और ड्राइव कर रहा है, वो तो आपने बैठ के देखना, भैया ये 3 घंटे मेरे फ्रीज हैं इस क्लास के। और जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसका एक रिटर्न प्लान, उसका भी एक स्केड्यूल होना चाहिए, ये टाइम इसी का है। एनी हाउ, देन उसके बाद यू हैव गॉट 2 कंप्लीट मंथ्स, जिनमें कि पहले तो ये लास्ट 2 पेपर्स रिवाइज करेंगे, एंड देन उसके बाद प्रॉब्ली 2 मोर रिविजन आप करेंगे। टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 4 रिविजन के आसपास हो जानी चाहिए आपकी, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रैंक और श्योर शॉर्ट पास। अगेन, if you are going for 3 papers, it's okay. If you are going 3 papers, take FMECO, advanced accounting, and then audit, or else CISSM is your call. Then 3 papers, tax, CMA and accounts. बड़े पेपर सारे खत्म हो गए। EISSM छोटा है, ऑडिट भी ग्रुप 1 का सबसे छोटा है, वो बाद में करेंगे। थियरी है, इन थियरी के साथ इनको रिवाइज करते रहेंगे। इन 3 के साथ जो सेकंड 3 होंगे ग्रुप 1 के, इनके साथ पिछले वाले रिवाइज करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड देन जब ये 2 होंगे, ये 3 रिवाइज करेंगे पहले, फिर ये 3 रिवाइज करेंगे उसके साथ में बाद में। प्रॉपर रिटर्न प्लान होगा इस चीज का कि कौन से कैसे कब रिवाइज करने हैं। वो प्लान्स जब आपके सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे ना, जब यहां होंगे, तो यू कैन डिस्कस विद मी। जब आपके ये खत्म हो जाएंगे और ये शुरू हो रहा होगा, सर अब पिछले वाले कैसे रिवाइज करें, वी कैन हैव अ सेशन अगेन, नॉट एन इशू एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है, दोज हु आर अनश्योर, डोंट बर्डन योरसेल्फ, बट प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग आइदर 3 or 2, डोंट गो फॉर 4 एट ऑल यार। पता नहीं हो या ना हो तो कम से कम 2 तो लगा लो यार, और 2 कौन से, प्रैक्टिकल वाले लगा लो, एफएमई को और एडवांस अकाउंट्स। 2 प्रैक्टिकल वाले लगा लो, नक्की करो, टेंशन फ्री होगा। अब अनश्योर हो और 3 लगाना चाहते हो, 3 लगा लो, एफएमई को, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट। अब भगवान ना करे रह गए, भगवान ना करे, वर्स्ट केस सिनेरियो, भगवान ना करे फेल हो गए, छोड़ दो इसे। मिड ऑफ, वैसे ही फरवरी एंड तक कोर्स खत्म होना था, जिस दिन रिजल्ट आता है अगले दिन छोड़ दो। फोकस ऑन फाउंडेशन। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सब्जेक्ट का तो ना, मैं जो लोग भी मेरे से जैसे फेस टू फेस ले रहे हैं या लाइव वर्चुअल ले रहे हैं, सबको 1 व्यू एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यू, इवन इफ यू डोंट कंप्लीट, यू कैन सी, एंड इनकी नवंबर तक की एप्लीकेबिलिटी है, बाद में देख लेना, एग्जाम के बाद, मई के बाद देख लेना, बट एटलीस्ट यू हैव डन। जब तक आप कर रहे हो तब तक जान लड़ाओ। रिजल्ट भगवान ना करे वर्स्ट, क्योंकि देखो यू हैव टू बी नोइंग इफ वर्स्ट हैपेंस व्हाट टू डू नेक्स्ट। प्रेशर नहीं लेना, फिर फाउंडेशन पे फोकस करना है। रिजल्ट की इंतजार करना तो बेवकूफी है, और जब फेल हो गए पता हो गया है तो इसको करना फिर बेवकूफी है। यार पहले ये तो कर लूं, छोड़ दो इसको बाद में देख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स, इसकी भी, और इवन EISSM की, तो हाँ, इनकी तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड जो है, इन सब की टिल नवंबर एप्लीकेबिलिटी सबकी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब की मिल जाएगी। ऑडिट की मैं अश्योर नहीं कर सकता, ऑडिट का वैसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। ऑडिट का हमारे पास जो फेस टू फेस है, नहीं तो गूगल ड्राइव है। सेंटर के लिए ये लाइव वर्चुअल नहीं है, तो उसकी मैं इसीलिए अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑडिट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। एफएमई को अगर इफ यू आर टेकिंग EISSM, देन ये 3 सब्जेक्ट्स का तो टेंशन नहीं, छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा अब आगे, लीव इट। फाउंडेशन की फिर से तैयारी करना, वर्स्ट केस सिनेरियो। पास हो गए तो फिर तो आगे बढ़ते ही रहो, जैसे ओवरऑल प्लान है कि भैया ये 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। अब अगर 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, इफ यू आर डन विद 2 सब्जेक्ट्स, डोंट गो फॉर 4, अगेन गो फॉर 3 एंड देन 3। डोंट गो फॉर 4, क्योंकि मुझे ये 2 रिवाइज करने हैं भाई,
आपने अगर चारों लगा लिए ना, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे पिछले वाले। अगर आपने 3 लगा लिए, अगेन आपको 3 लगाने हैं, फिर 2 लगाने हैं। पास हो जाते हैं तो क्लियर रास्ता है, 3-3-2 या 2-3-3 इज योर कॉल। अनश्योर है, श्योर पास हो जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप में से किसी ने भी अगले सब्जेक्ट्स लगाए और पिछले रिवाइज नहीं किए, विल बी अ बैड स्ट्रेटजी। It's an extreme bad strategy because ultimately, let me share with you, identify your caliber and start your preparations accordingly. मैं सिंपल सी बात क्या बोल रहा हूं आपको, अगर आपने प्लानिंग करनी है, मेक योर प्लान्स इन राइटिंग। ओरल कुछ नहीं होता जी, जो करना है आपको प्लानिंग इन राइटिंग बनाने हैं। मेक योर प्लान्स इन राइटिंग, ओरल इज नथिंग। कहते हैं ना, अगर आपने ये टर्म, ये सेंटेंस कभी सुना हो मेरे से या अदरवाइज कहीं से भी, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आपने जो काम करना है उसका प्लान बनाओ, रिटन प्लान बनाओ, एंड देन जो प्लान बना लिया है उस प्लान पे काम करो। वर्क योर प्लान, जो प्लान बना लिया है उसके हिसाब से काम करो, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको अगर बोलूं, इफ यू आर नॉट प्लानिंग, बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई यार, एक तो पहली चीज क्या है यार, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए कोर्स कर रहे हो, वी हैव टू गो बाय डेडलाइंस। इनकम टैक्स की रिटर्न डेट होती है, इनकम टैक्स की फाइलिंग, एक तो पैसा जमा कराना होता है उसकी डेट होती है, फिर उसको उसकी कैलकुलेशन जमा कराना उसकी रेट होती है, जीएसटी की उसकी डेट्स होती हैं। वी हैव टू ऑनर दोस। सो अगर हम प्लान्ड नहीं चलेंगे तो हम कभी उन डेट्स को ऑनर नहीं कर पाएंगे। ऑडिट की स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, हर चीज की डेडलाइंस होती हैं। इफ यू आर नॉट प्लानिंग इन राइटिंग, बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पाथ ऑफ सक्सेस पे चलना है, इफ यू वांट टू राइज इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव क्लियर एंड डिफाइंड गोल्स। जैसे अभी मैंने बोला था, हाँ भाई कितने लोग सोचते हैं 2 ग्रुप देंगे, हाँ जी कुछ नहीं बोल दिया, हाँ जी कितने 1 देंगे, ठीक है जी कुछ नहीं बोल दिया, बाकी कौन क्या कैसे सोचेंगे, अभी तो सुन रहे हैं, डिसाइड करेंगे। यू हैव टू हैव क्लियर एंड डिफाइंड गोल। चाहे अभी तक नहीं था तो इस सेशन के बाद हो जाए, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। Let it be today that you decide what you are going to do and how you are going to do it. Clear and defined goals होने चाहिए, crisp plans to achieve them होने चाहिए, consistent regular efforts होने चाहिए। आपके ये C's हैं, सारे C's हैं, clear and defined goals, crisp plans to achieve them, consistent efforts, and last but not the least, continuous self belief। अगर आपका self belief नहीं होगा, ये 4 C's आपके होने चाहिए, critically important if you want to succeed in life। Anyhow, so सक्सेस क्या चीज है जी? सक्सेस क्या भला होती है? सी योर गोल, अंडरस्टैंड योर ऑब्स्टिकल्स, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, बेसिकली सेल्फ बिलीव कर रहे हैं, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, अगेन सेल्फ बिलीव कर रहे हैं, एम्ब्रेस द चैलेंज, एक्सेप्ट करो हाँ जी क्या है, एंड देन स्टे ऑन ट्रैक, कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहो, एंड देन सी हाउ, शो हाउ द वर्ल्ड दैट you can do it। कैसे कर सकते हो? show this thing to world। anyhow सबका अपना है। एक चीज है I can't do it कहते हैं ना लोग, I can't do it, इस can't का T हटाओ। T is basically ये जो can't का T है ना, I can't do it, both groups नहीं कर सकता, या ये नहीं कर सकता, या ये नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकता, ये जो can't का T है, ये T is trouble, ये T is tension। इसको हटाओ भैया, ये ट्रबल और टेंशन नहीं चाहिए मुझे। आप आई कैन और फिर उसके बाद आई विल, दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने अपनी तरफ से बोलना था, मोर और लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैंने आपको बोला। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस इनवाइट करूंगा। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछें। देखो ऐसा है, इफ यू गाइस वेट फॉर द रिजल्ट, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर टाइम, बिकॉज यूल बी जस्ट वेटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स। इन केस भगवान ना करे दोज हु आर डाउटफुल दे फेल, छोड़ दो। जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे इन हाउस, ये 3 सब्जेक्ट जो मैं बोल रहा हूं, इन 3 सब्जेक्ट्स छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनका बाद में देख लेना। पूरा सब्जेक्ट देख लेना, पूरा बैकअप है कंप्लीट, जितना किया हुआ ना उसका भी बैकअप है कंप्लीट, 1 एडिशनल बैकअप है, कोई टेंशन ही नहीं है।
आपने फेस टू फेस क्लास की, फेस टू फेस क्लास पूरी कर ली, जितने तक कर ली, उसके बाद फिर भगवान ना करे अब आप में से कोई कहे सर मैं क्या फरवरी एंड तक कंप्लीट करके फिर उसके बाद कर लूं तो मेरा बैकअप रहेगा? यस बैकअप रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, वो एक एडिशनल बैकअप है। नवंबर में एग्जाम है, कभी कोई भी चीज फिर से रिवाइज करनी होती है, देखनी होती है, बिंदास देखो, कोई टेंशन नहीं है। बट डोंट वेट और वेस्ट योर टाइम।